You added big Yes. photographs. This is a photography plus archiving material. From 1930 onwards सारा posters हैं, archiving materials हैं, सभी actors, directors. NGO में came in 1996. Before that it was a public hall. Gandhiji has delivered speeches here, sir. Rabindranath Tagore, today is Rabindranath Tagore's Birthday, yeah. 65th birthday Yes. anniversary. In 1930 he delivered a speech here. Ah. It used to be a big public hall. Now it has been converted into a 5-floor deck. Ashaji, she went with me to my village. Yeah. And many times. She has done more than 15,000 songs. Yes. And Then right. recently parted. Yes. So the show got conceptualized because of Dharamji. So now I come into happening that. Neha, you also try. Yes, sir. Her grandfather has been captured in Bollywood since 1940. Is it? Kamat Photo Flash. अच्छा And she has also put up a gallery here. क्या है? Rabindranath Tagore के Saradu का 160th anniversary has been captured. Thank you very much. Commemorated him. इधर देख All of us, Pradeep ji sir 50 सालों से फोटोग्राफी कर रहे अच्छा हैं. हाँ And he has worked with Times of India, Free Press Journal, many newspapers. He was also with Times of India. अच्छा SM Masoja ji has a collection from 1913, sir. First Wow. and Perfect. yes, 1913 से लेके सारा collection है, posters, pen. हम आपको दिखाते हैं सर. I visited Arunachal. I'm Yes. working on a project on it. उन्होंने ऊपर सितारे करते हैं, हम लोग तो आसमान से भी सितारे तक टोटल पूरा बॉलीवुड का करते हैं. इसमें फोटोग्राफर्स, सिंगर्स, डांसर्स, पूरा बॉलीवुड का जो जर्नी है वो भी यहाँ से रिव्यू कर रहे हैं. फिल्मों के डायलॉग्स का वर्क बनाया है. ये सारा काम प्रदीप चंद्रा जी ने पिछले 50 सालों से सिनेमा को कवर कर रहे हैं. अमिताभ बच्चन जी ने इनका सोचा जी दोनों की एग्जीबिशन ओपन की हैं. आज की डेट पे अमित सर, आमिर, शाहरुख सबके फेवरेट. उन्होंने वो इंडिया टुडे की फोटोग्राफी कर रहे हैं पिछले 20 सालों से. Yes. And we are taking exclusive permission for using these photographs. This is Neha Kamat. उनके दादाजी की खींची हुई photographs है. दादाजी का फोटो दिखाई I must have seen it maybe 10 times. One of his pictures that we have, the only working student. Kamal Rao. I think it was a canvas that he used. Satyajit, sir. We did only one movie. Which movie of Himaji? अच्छा First movie. हिमांशु का ही थे She was सपनों का 14 सौदागर। years. लेकिन वो तो बहुत छोटी लग रही है 14 साल की थी. कल ही बात किया हिमाजी सर इनाग्रेशन के दिन हिमाजी थी हमारे राज्यपाल महोदय से. गुरुदेव का वो है चौथे सर. जो भी Some of these photos are never used in movies, sir. Qatar with her. Yeah. And she has been maintaining them, sir. Mumbai में space का इतना constraint है, but salutes to her for continuing with this. That's very good. This was Every kind of photograph what should they be have to because then I think nobody will come to know what kind of work, how it was started. These are just films, so actually on set how the work is done. These are all the variation of pictures that is. Now the 1930s, 40s era, जो archival material है, ऐसे में मसूजा जैसा.
बात पहली ये कब बोला था 1932 और ये 31 पहली गेंद पाँच बोला सेकंड ये बहुत पुरानी एनजीएमए के आने से बहुत पहले मैं एनजीएमए आने के बाद ही खरीदी गई एनजीएमए बालाकृष्ण आर्ट इन लोग का पीछे जमीन को पीछे नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट्स मैं तो पहले बार आया हूँ। डायरेक्टर मैडम ने मुझे इनवाइट किया, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। बहुत खूबसूरत से बॉलीवुड तो हम लोग नॉर्मली नहीं कहते, ये तो एक वेस्टर्न लैंग्वेज है, हम तो इसको इंडियन फिल्म इंडस्ट्री ही कहते हैं। तो मुंबई में इतने सालों से जो फिल्म इंडस्ट्री का जर्नी है बहुत खूबसूरती से यहाँ दर्शाया गया है और जिस तरीके से मेंटेन किया है, क्यूरेट किया है, पेंटिंग को भी और पुराने फोटोग्राफी को भी, मैं बड़ा इम्प्रेस हूँ। और जो जर्नी को स्टेप वाइज उन्होंने जो दिखाया है वो भी बहुत अच्छा किया है। कोई भी आदमी इसमें 2 घंटे अगर टाइम देंगे तो पूरा इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की जर्नी को समझ में आ जाएगा। और ब्लैक एंड वाइट साइलेंट से लेकर के आज तक का जर्नी को दिखाया है। और मुझे अच्छा लगा कि जो लेजेंडरी स्टार्स है जो रिसेंटली गुजर गए हैं उनको भी यहाँ श्रद्धांजलि देने के लिए उन्होंने प्रावधान रखा है। तो अच्छा है, जैसे आशा जी, धर्मेंद्र जी, कई इस तरह का जो स्टार होते हैं, बड़ा कंट्रीब्यूशन जिसका है, उनका भी एक ट्रिब्यूट पे करना समय समय में, ये भी अच्छा विचार है। एक तो ये जो कंसेप्ट है मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत सिंपल वे में इन्हें दर्शाया गया है, इसलिए इसमें कॉम्प्लिकेटेड नहीं। आप तुरंत इवन कोई एक्सप्लेन नहीं भी करोगे, अगर अपने आप घूमोगे तो भी समझ में आ जाएगा जर्नी को, हमारा फिल्म इंडस्ट्री का जर्नी को समझ में आ जाएगा। सर एक और सवाल इम्पोर्टेंट ये है कि वंदे मातरम को लेकर जिस प्रकार से सरकार ने विशेष दर्जा दिया है, जिसके बाद कुछ समुदाय, मुस्लिम समुदाय की बात करते हैं, जैसे हमायन पार्टी हो गई, और जब वंदे मातरम को पहले बार इस्तेमाल किया गया था और A.R. रहमान का जो वंदे मातरम को दूसरे स्तर में ले गए हैं, वो भी बहुत एक अच्छा एपिसोड है हमारा फिल्म इंडस्ट्री के जर्नी में, म्यूजिकल जर्नी। तो वंदे मातरम को तो राजनीतिक कोई किसी रूप से देना ही नहीं चाहिए, कोई जगह नहीं है। अगर वंदे मातरम को भी कोई पॉलिटिक्स करता है तो फिर तो गलत बात है। सर, कांग्रेस से गठबंधन टूटने के बाद डीएम के सांसदों के लिए अलग सीटिंग की मांग की है कनिमोझी ने। लोकसभा अध्यक्ष मैं अभी राजनीतिक बात नहीं करना चाहता हूँ। पार्लियामेंट या फिर पत्र मिला है मुझे, बात किया है सबने, डीएमके के MP कनिमोई और सबका डिमांड है। मैंने कहा कि अभी तो पार्लियामेंट सेशन नहीं चल रहा है, लेकिन हम जैसे उनका डिमांड है उस हिसाब से हम सिटिंग अरेंजमेंट कर देंगे। इंडिया ब्लॉक में बड़ी फूट पड़ी है सर, समाजवादी पार्टी ने भी इशारा किया है। जो इंडिया गठबंधन बना आप था बहुत हेवी क्वेश्चन पूछ रहे हैं राजनीतिक का। ऐसा है, पॉलिटिक्स का ऐसा है कि पॉलिटिक्स तो चलते रहेंगे और देश जो है लोकतंत्र है, भारत लोकतंत्र है और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में ये उथल पुथल बोलिया ये सब चलते रहेगा। मैं पार्लियामेंट्री अफेयर्स मंत्री भी हूँ, इसलिए सबको साथ में लेके मैं चलता हूँ। मेरे लिए कोई दुश्मन, कोई विरोधी मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। ठीक है, पार्टी विरोधी हो सकता है, लेकिन सब पार्लियामेंट में हम सबके साथ बात करते हैं, सब मुझे बात करते हैं, मैं भी बात करता हूँ। तालमेल करके देश का ही सेवा तो करना है ना। सर आप यहाँ पे आए, सेलिब्रिटी की बात करते हैं, बॉलीवुड जगत जो है सभी को जोड़ने का काम करता है। भाषा विवाद आपने सुना होगा, जिस प्रकार आप मुंबई में थे, सवाल है भाषा विवाद को लेकर कि हिंदी मराठी को लेकर विवाद चल रहा है। नहीं, भाषा विवाद में तो मैं नहीं जाता हूँ। देखो, फिल्म इंडस्ट्री में कई शख्सियत ऐसा है जिन्होंने फिल्म के माध्यम से देश का सेवा किया है और देश का, भारत में इसका कल्चर को विदेशों में भी दिया है। अभी कई देश ऐसा है जो
हमारा फिल्म इंडस्ट्री का गादा फिल्मों को फॉलो भी करते हैं। हम जब विदेश जाते हैं तो बहुत सारे लोग मिलते हैं, सब फिल्म हिंदी फिल्म को बहुत पसंद करते हैं और रीजनल फिल्म भी काफ़ी लोग पसंद करते हैं। लेकिन भाषा विवाद जो शुरू होता है सर, भाषा विवाद में अभी मैं नहीं पढ़ूंगा, क्योंकि हम अभी ये जो है ना नेशनल गैलरी ऑफ आर्ट, कल्चरल आर्ट्स, यहाँ मैं हूँ, तो यहाँ मैं कोई पॉलिटिकल बात नहीं करूँगा। मैम एनजीएमए में पहली बार बॉलीवुड एग्जीबिशन लगा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? मुंबई को यूनेस्को ने क्रिएटिव सिटी ऑफ फिल्म्स करके रिकग्नाइज किया है और इसको सेलिब्रेट करने के लिए तथा धर्मेंद्र जी, आशा भोसले जी और रघुराई जी जो भारत के एक आइकॉनिक फोटोग्राफर रहे हैं, इनको ट्रिब्यूट देने के लिए हमने ये शो क्यूरेट किया है। इसका नाम लेंस इन लेगेसी बॉलीवुड इन फोकस, हिंदी सिनेमा को फोकस में रख के, मुंबई का जो सिनेमा उसको फोकस में रख के हमने बनाया है और भारत की पहली फिल्म से लेकर लेटेस्ट आज की दौर में भी जो कलाकार काम कर रहे हैं उन सबको यहाँ सेलिब्रेट किया जा रहा है। ये एग्जीबिशन 30 जून तक जनता के लिए खुली है और मैं चाहूँगी कि मुंबई के सभी कला प्रेमी, सिने प्रेमी यहाँ जरूर आए और ये सारा जो हमने काम दिखाया है फोटोग्राफर्स का, आर्काइविस्ट का, उसे एंजॉय करें। कई लेजेंडरी और वेटरन लोग यहाँ आके विजिट करके गए और हेमा जी आए थे इनॉग्रेशन के टाइम पे और उन्होंने कहा कि हम इस तरह की फिल्म की एक अलग जगह लेके हमेशा के लिए एक आर्ट ऐसा गैलरी बननी चाहिए, तो उसको लेकर के कुछ बोलें। जिस तरह का मुंबई का कंट्रीब्यूशन है एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का, सिनेमा का जो कंट्रीब्यूशन है भारत में, भारत की अर्थव्यवस्था में, भारत में रोजगार निर्माण में, भारत की जो छवि है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसके निर्माण में हेमा जी की डिमांड लाजमी लगती है। एक सिनेमा म्यूजियम मुंबई में है, लेकिन जिस तरह का कंट्रीब्यूशन है उस हिसाब से हेमा जी की ये डिमांड थी कि बहुत बड़ा एक जगह असाइन करके जहाँ परमानेंटली डिस्प्ले रहे इसी तरह अलग अलग आर्टिस्ट का, प्रोड्यूसर्स का, डायरेक्टर्स का, और ये डिमांड सही लगती है और उम्मीद है कि आज नहीं तो कल एक ऐसी जगह बनेगी जो एक बहुत बड़ा टूरिस्ट अट्रैक्शन भी बन सकती है। थैंक यू।